the our last lecture, we are studying about the Julia olefination. Olefination means simply we know that there is a formation of double bond. Okay, so this is given by the Julia, so that's why it is the Julia olefination name is given to this reaction. This is highly radioselective reaction is there. Okay, so in which that is very simple reaction. The aldehyde is react with the sulfone. Okay, sulfone is there, different type of sulfone, and this sulfone is react with this aldehyde, and this aldehyde is converted into the this this is a transform of alkene. Okay, because it gives only transform, so that's why it is the highly radioselective reaction. Okay, so this is the basic reaction for Julia olefination. Okay, so now we see here there is a reaction and their mechanism for the Julia olefination. This is the highly radioselective reaction is there for the formation of alkene. Okay, but we are seeing here there is a alkene is formed only transform of alkene is a product of Julia olefination. Okay, so this is a very good reaction because it is a highly radioselective. Only trans alkene we can be formed by using this type of reaction. So let me see. So mainly there are two parts. First one is the sulfone. This is one number is given. This is the sulfone. And then second one is the aldehyde. Okay. The sulfone is an aldehyde. Both are the इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. इफ यू सी देयर स्ट्रक्चर, दोनों भी हमें कैसे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सल्फोन में भी डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में दो, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, और यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है. डेफिनेटली वी नो दैट वेरी वेल, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. बट व्हाट we do here, in first step there is a n-butyl lithium is there, the organolithium is there, and it acts as a base, and this base abstract the proton, acidic proton from this sulfur. Okay, when this proton is abstracted by this organolithium and develop this negative charge on this carbon. Okay, now this is become to be the nucleophilic in nature. Okay, now it ready to attack on this aldehyde. Okay, so now here this the negative charge is ready to attack on this carbonyl double bond. So we can see this open up on the oxygen. It is open upon the oxygen, and this oxygen means there is a negative charge on the oxygen. Okay, so firstly we see the reaction and then we see the mechanism separately. So here this sulfone react with aldehyde in the presence of base and then alkyl halide. So finally we get this is the transform of the alkene is a product. So there is a alkene is there, that means it is known as the olefination, and there is a highly radioselective because it form only trans product after the this reduction, metallic reduction. Okay, so now we can see how it is formed. Their mechanism is there. Okay, let me see. This is the sulfone. This first number is the sulfone. The n-butyl lithium is a base. It abstracts the proton from this carbon because this proton is acidic in nature. Okay, so abstract this proton and develop the negative charge on this carbon. This is the carbanion. Okay, and this carbanion it is stable due to the delocalization with this sulfur oxygen double bond. Okay, so one of the double bond is open upon the oxygen. So you can see here. Okay, so it is structure is look like enol, है ना. इनॉल के जैसा ये स्ट्रक्चर जो है हमें दिखता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज हो रहा है सल्फर के साथ में. ठीक है ना, मतलब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे सल्फर है और ये जो ऑक्सीजन है सल्फर को लग लग के यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन पे जो है ये जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. ठीक है, और इसको लग के जो एक कार्बन है यहाँ पे ये जो है डबल बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, और इसको लग के एक आर है इस तरह से, और सेकंड साइड में जो दिख रहा है हमें यहाँ पे भी एसओ डबल बॉन्ड है. ठीक है, और एक साइड में इसको फिनिल ग्रुप है. तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो है ये इनॉल के स्ट्रक्चर के जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है. तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक हुआ है ना. तो ये जो अभी न्यूक्लियोफाइल इसका बना है तो ये रेडी टू अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे वो जो है कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है ना, तो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे, तो ऑक्सीजन जो है ये ओपन अप हो जाएगा ये वाले ऑक्सीजन पे. ठीक है, इस तरह से.
तो क्या हुआ, हमें ये स्ट्रक्चर मिला। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, ओके, एंड दिस रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, okay. So let me see here, this R1, here this R1, it is come from the this sulfone, this is R1 come from the sulfone, and this R2 come from the aldehyde molecule, okay, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हमने अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट किया, तो ये जो है इसका ईस्टर बन गया, ईथर बन गया यहाँ पे, ये जो R3 यहाँ पे चला गया, मतलब ये जो है एनायन ने अटैक किया यहाँ पे sp2 हाइब्रिड SN2 मैकेनिज्म हुआ, और यहाँ पे ये जो है R जो है R3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सोडियम अमालगम जो है यहाँ पे, ये जो है सोडियम, ये तो सोडियम मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो ये जो सल्फोन वाला पार्ट जो है यहाँ से, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और ये जो ईथर वाला पार्ट ये भी निकल जाएगा, यहाँ पे जो ये अल्कोहलिक प्रोटॉन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रोटॉन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये फिर से एक प्रोटॉन जो है अल्कोहलिक, अल्कोहल से और एक प्रोटॉन, ये जो है क्योंकि अल्कोहल एसिडिक होता है, तो और एक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हमें इसी तरह से बनते हुए दिखाई देगा। ये देखो, ये इस तरह से, बट फाइनली जो स्ट्रक्चर हो रहा है उसमें हमें अल्कीन देखने को मिल रहा है, अल्कीन, एंड विद द हाईली रेडियो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्कीन वी फाउंड फाइनली इन अ प्रोडक्ट, ओके। तो ये जो है इस तरह से ट्रांस, हमें क्या समझना है कि तीन चीजें इसमें समझनी है। पहले तो एक सल्फोन के साथ में जो है अल्डिहाइड की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये एक चीज समझनी, मतलब सल्फोन, सेकेंड जो है अल्डिहाइड, और थर्ड जो है इसका प्रोडक्ट जो कि हमें ट्रांस वाला प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रांस वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है और बाकी के इस रिएक्शन को हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सल्फोन, तो ये सल्फोन इस तरह से रहता है ना, और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ का प्रोटॉन चला जाता है, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ये डिलोकलाइज हो जाएगा इसके साथ में, तो फाइनली हमें इस तरह से स्ट्रक्चर इलाइड जो है इसका, जो है इलाइड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, सल्फोनियम इलाइड, ठीक है। तो ये लाइक इनॉल के जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अब एक एग्जांपल जो है स्टैंडर्ड ओलिफिनेशन का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, तो अल्डिहाइड, उसके साथ में सल्फोनियम इलाइड, और ये एसिटिल हैलाइड, मतलब कोई भी एक अल्किल हैलाइड जो एसिटिल हैलाइड जो है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे, तो इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो इस तरह से इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा, एंड फाइनली सोडियम के साथ में इसका रिडक्शन करते हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें इस तरह से फाइनली अल्कीन बनते हुए दिखाई देगा, जो कि ओलेफिन जिसे कहते हैं हम, वो भी ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। तो समझना क्या है हमें कि ये जो है, एक जो आर है ये आता है अल्डिहाइड से, और एक जो आर आता है वो आता है सल्फोन से, मतलब ये ब्लू वाला जो आर है ये आया सल्फोन से, और ये रेड वाला आर जो है ये आया अल्डिहाइड से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें समझना है इस मॉलिक्यूल को, और आपको एक इस रिएक्शन को याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें याद रखनी है वो की, जो कि है सल्फोन के साथ में रिएक्शन अल्डिहाइड की होगी, और प्रोडक्ट जो होगा वो ट्रांस वाला प्रोडक्ट रहेगा, दूसरा सीस वाला प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो अल्किन इसमें बनता है। तो अब ये देखो, ये वाला एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, अब यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दोनों भी ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ईथर है और यहाँ पे जो है कार्बोनिल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है इस मॉलिक्यूल में। बट हमें पता है कि जो भी ये जूलिया ओलिफिनेशन जो होता है ये होता है कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ओलिफिनेशन, मतलब अल्कीन जो फॉर्म बना होगा ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सल्फन जो है, सल्फन को हम यूज करेंगे, और सल्फन को लग के जो एक आर होता है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप लिया है, तो मिथिल ग्रुप जो है ये एक आर ये सल्फोन से जाएगा, और दूसरा जो है तो ये कार्बोनिल ग्रुप को जितना भी स्ट्रक्चर अटैच हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर,
ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस जगह पे आएगा ये CH2, ठीक है, इस तरह से CH2, ठीक है। अब हम किस तरह का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लेते हैं उस पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने CH2 लिया तो यहाँ पे जो है ये ज्योमेट्री जो है या सी ट्रांस में हम इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, इसको नहीं क्लासिफाइड कर सकते। बट इसमें अगर हमने R अलग टाइप के ले लिया अदर देन मिथिल ग्रुप अगर हम लेते हैं तो ये जो जूलिया ओसिनस्की ओलिफिनेशन, मतलब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसमें ओलिफिनेशन किया है जिसमें जो ट्रांस प्रोडक्ट है ये हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही सीस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ अल्कीन जो है ओलिफिन यहाँ पे सिर्फ बन रहा है, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बट अदर देन मिथिल ग्रुप जब हम यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे इथिल है या और कोई ग्रुप होता है तो इसमें हमें ट्रांस वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाली रिएक्शन देखते हैं। इसमें देखो ये वाला सल्फोन है, इस सल्फोन में ये वाला रिएक्टिंग सेंटर है अपना, ये कार्बन जो हमें दिख रहा है, ठीक है। इसको लग के एक R है, ठीक है, ये R1। दूसरा R2 जो है ये आएगा ये अल्डिहाइड से। तो हमारा सीधा सीधा हमें पता है रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे मैकेनिज्म अगर हम समझते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा ये कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है ना। एलडीए जो है ये बेस है, ये बेस मतलब यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है, ये O पे ओपन अप हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब इसी मॉलिक्यूल में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ में। तो ये जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है इधर ओपन अप होगा जो कि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा। तो फाइनली ये रिवर्स होके यहाँ से ये जो सल्फोन है ये सेपरेट हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। और फाइनली पूरी रिएक्शन होने के बाद ये जो है SO2 बाहर निकल जाएगा, ये रिमेनिंग पार्ट जो है सल्फोन का ये वाला बाहर निकल जाएगा। एंड फाइनली वी कैन सी दिस 1R फ्रॉम सल्फोन, दिस इज द R1, ये जो R है ये सल्फोन वाला R1 और ये R2 फ्रॉम द अल्डिहाइड। So you can see there is a olefin is formed along with the specific means residue selectivity there. Okay, and we can see there is a trans product is the final product for this Julia olefination, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन हम समझते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कैसा है इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है हमें। जो भी सल्फोन दिख रहा है हमें ये वाला सेंटर सल्फोन का, सल्फोन को लग के ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे जो है ये वाला मॉलिक्यूल क्या है इसका कोई टेंशन नहीं, बट यहाँ पे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो रिएक्शन जो है कहाँ पे होती है स्पेसिफिकली यहाँ पे, ये वाला सेंटर और दूसरा ये वाला सेंटर, ठीक है ना यहाँ पे। तो अल्कीन जो बनेगा इसी डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो ये बाकी का स्ट्रक्चर जो है ये पूरी तरह से मतलब ये सल्फोन जो है ये तो न्यूट्रल यहाँ से निकल जाएगा पूरा स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट जो है मतलब यहाँ से ये जो है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे ये बाकी का स्ट्रक्चर वैसे की वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन मतलब अल्डिहाइड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये जो है इसको ये डबल बॉन्ड जो है ये फॉर्म हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड बना है इसमें कंडीशन जो है ये इसकी ज्योमेट्री जो है ट्रांस कंडीशन में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है जूलिया ओलिफिनेशन, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हम ये देखते हैं अगर यहाँ पे मिथिल ग्रुप होता है तो यहाँ पे हमें इस तरह से CH2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई CH और ट्रांस हमें प्रोडक्ट नहीं दिखाई देता है, सिर्फ वहाँ पे ओलिफिन मतलब डबल बॉन्ड सिर्फ फॉर्म होता है। अब ये वाला मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें जो है ये यहाँ पे 2 कार्बोनिल है तो कोई भी दोनों भी एक जैसे ही है, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड का जैसा जो कार्बोनिल ग्रुप है तो ये कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट होगा। और दूसरी चीज जो है ये वाला कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब ये जो 2 R है ये अल्कीन को सब्स्टिट्यूट होते हुए हमें दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे बना है ओलिफिन, ठीक है, ये इस तरह से।
ठीक है, और कुछ रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे अल्कोहल का भी कन्वर्जन यहाँ पे हमें अल्कीन में यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ओलिफिनेशन का एक वन ऑफ द टाइप है। तो ये जो होता है ओलिफिनेशन, कौन सा, जूलिया ओलिफिनेशन। जूलिया ओलिफिनेशन में हमने देखा कि सल्फोन की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो है डबल बॉन्ड बनता है, जो कि ओलिफिन हम उसे कहते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्म में डबल बॉन्ड बनता है। बट जब हम मिथिल ग्रुप यूज करते हैं तो हमें सिंपली ओलिफिन ही वहां पे फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से होता है जूलिया ओलिफिनेशन। अब जूलिया ओलिफिनेशन होने के बाद हम देखेंगे इनोलेट अल्किलेशन। ये पहले ही हमने ऑलरेडी स्टडी किया है प्रीवियस कुछ स्लाइड में कि अल्किलेशन मतलब अल्किल ग्रुप का हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इनोलेट के साथ में। ठीक है, अब इनोलेट जो है हमें पता है, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड होता है, अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, या और कोई कार्बोनिल कंपाउंड की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला जो होता है ग्रुप, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है एसिडिक प्रोटॉन होता है, तो ये प्रोटॉन जाने की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनता है। तो निगेटिव चार्ज जो है डिलोकलाइज होगा इसके साथ में, तो यहाँ पे हमें इनॉल फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। तो ये वाला जो है इनॉल। ठीक है, अब ये इनॉल जो है इसका करेंगे हम अल्किलेशन। अल्किलेशन करना मतलब रिएक्शन विद द अल्किल हैलाइड। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड। तो ये जो है, ये इनॉल जो है, ये जो है इनॉल या इनोलेट हम कहेंगे, तो ये जो है ये है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक जो है, तो ये जो आरएक्स है इसमें जो कार्बन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये जो है निगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है यहाँ पे आर पे, तो एक्स जो है एज हाईलाइट करके निकल जाएगा बाहर, बिकॉज इट इज अ लीविंग ग्रुप, एंड इट गिव्स अल्किल सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट। हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं अल्किल सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट, मतलब ये जो सी सी बॉन्ड है यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है हम अल्किलेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें दो चीज होती है, पहली चीज जिसमें कि इनोलेट बनेगा जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब अल्डिहाइड कीटोन या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, it firstly convert into the enolate. This is the first step. And in a second step, this enolate act as a nucleophile and attack on the electrophilic center from the alkyl halide. ठीक है, and you can see we'll get the product along with the alkyl substitution. So this is known as to be the alkylation, but alkylation of enolate. So this is called as the enolate alkylation. ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल, इसके थोड़े हम कम एग्जांपल देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये टॉपिक स्टडी किया है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ये वाला कीटोन मॉलिक्यूल। अब कीटोन लेते हैं, इसमें दो अल्फा कार्बन है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, दोनों भी सेम है। तो किसी एक साइड में इसका इनोलेट बनेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली कंडीशन। और यहाँ से इसने अटैक किया ये सेकंड अल्किल हैलाइड। अब ये जो अल्किल हैलाइड है, ये तो हम एज पर अवर डिजायरेबल प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें मिथिल ब्रोमाइड ही लेना है, इथिल ब्रोमाइड ही लेना है, या कोई भी। दैट ऑल डिपेंड अपॉन योर डिजायरेबल प्रोडक्ट एंड योर रिक्वायरमेंट। हमें किस तरह सा यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, जो कि सीसी बॉन्ड हम बना रहे हैं, इसमें न्यू सीसी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो ये सीसी बॉन्ड किस तरह से बनाना है, ये टोटली डिपेंड होता है अपने। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह से अल्किल हैलाइड यूज करना है। ठीक है, so by using a different type of alkyl halide, it may be the saturated or unsaturated, it may be the aliphatic, aromatic, any type of alkyl halide you can be used, and you can be form a different type of carbonyl compound along with the newly CC bond form. Okay, so the next example we can consider here, there is a cyclic ketone, that is the cyclohexanone is here. तो इसमें हेक्सानोन में हमें पता है कि ये कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों भी कैसे है, अल्फा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दोनों भी क्या करेंगे, ये एनायन बना सकते हैं। तो ये एनायन बनाएगा, हमने समझो इस साइड में ले लिया, एनायन बन गया, और इसके साथ में हमें अलील क्लोराइड की रिएक्शन कर दी। ठीक है ना, अलील क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो ये जो निगेटिव चार्ज है इट अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा एज अ क्लोराइड। तो ये जो अलील ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये वाली पोजीशन पे। तो ये हमें न्यूली सीसी बॉन्ड यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है,
अल्किलेशन। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी हो सकती है इनोलेट अल्किलेशन की? तो वेरी सिंपल सी बात है, देखो इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो प्लेनर होता है, ठीक है ना? तो प्लेनर जो है, तो इस प्लेनर ग्रुप के ऊपर, ठीक है, अब ये जो है अल्किलेशन, इसमें एक तो ऊपर से अटैक हो सकता है, मतलब इस तरह से अबव द प्लेन हमें प्रोडक्ट दिखेगा, हो सकता है बिलो द प्लेन भी अटैक हो जाए और हमें इस तरह से प्रोडक्ट, मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटी होती है इसमें, कि इसमें ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो जो होती है ये इनैंशियोमर फॉर्म करती है। मतलब ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन अल्किलेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि इट गिव्स इनैंशियोमर, 2 इनैंशियोमर हमें वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है? ये जो है सिंपल सी उसकी जो है ये स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। गवर्निंग स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन, अ chiral starting material elide a chiral and racemic product। ठीक है? तो इस तरह से हमें ये जो है इसकी ज्योमेट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है? ये वाला एक एग्जांपल जो कि हमने पहले ही देखा है, ठीक है? यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये एनायन यहाँ पे बनेगा और ये जो है ये डबल बॉन्ड के साथ में डिलोकलाइज़ होके ये इनोल इसका इनोलेट बना देगा और ये फिर से इनोलेट जो है डबल बॉन्ड बनाते हुए ये वाया कार्बन रिएक्ट होगा नेक्स्ट कार्बन के साथ जहाँ पे अल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूट हो ये वाला एक्स। तो एक्स जो एज़ अ हैलाइड करके निकल जाएगा और यहाँ पे जो अल्किलेशन हमें देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे जो बॉन्ड है यहाँ पे ये इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है? तो ये सिंपल सी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है जो कि एन्हांसोमर बनाता है या जिसे हम रेसिमिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है? अब इसको यहाँ पे ही रुकते हैं हम, जो कि इनोलेट को हमने स्टडी किया अल्किलेशन, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिटेल में इसको अल्किलेशन को हमने स्टडी किया है। तो अब नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है जो कि कॉन्जुगेट एडिशन की रिएक्शन होती है टू इनोन। ठीक है? मतलब इनोन में कॉन्जुगेट एडिशन, मतलब यहाँ पे जो जो देखते हैं हम ये मॉलिक्यूल जो जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये वाला मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसमें कॉन्जुगेट एडिशन होती है, कॉन्जुगेट एडिशन। तो इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से होते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। अब इसमें हमें दो यहाँ पे डबल बॉन्ड एडिशन जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि एडिशन होता है डबल बॉन्ड पे, ठीक है? तो डबल बॉन्ड जो है इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में दो हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कार्बोनिल वाला डबल बॉन्ड है और दूसरा ये अल्फा बीटा डबल। तो ये इसमें हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1-2 होता है डबल बॉन्ड और ये 3-4 होता है डबल बॉन्ड, जिसे हम 3-4 कहते हैं। ठीक है? इसको इस तरह से अगर नंबरिंग करते हैं हम, तो ये 1, 2, 3, 4 हम उसको नंबरिंग कर देंगे। तो 2 इसमें बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ठीक है? इसमें जो है कंजुगेट एडिशन ऑफ इनोन में हम जो देखते हैं, इसमें जो एडिशन होता है, वो 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट जो होता है, ये इसमें हमें बनते हुए दिखता है। ठीक है? 1,4 एडिशन वाला। तो देखो किस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। इसमें 1-2 भी प्रोडक्ट बनता है, बट 1-2 प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ अ काइनेटिक प्रोडक्ट, ठीक है? अब काइनेटिक प्रोडक्ट होने की वजह से ये जो है ये रिवर्स में चला जाएगा और फिर से यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 1-2 पे एडिशन होता है, यहाँ पे 1-2 पे एडिशन जब होता है, तो ये आर्यन जो है हम यहाँ पे रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मतलब जिसका हम एडिशन करने वाले हैं, तो ये जो है यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है? मतलब R ये जाएगा कार्बोनिल पे जो कि नेगेटिव चार्ज है अलोंग विथ, और M जो है मेटल जो कि मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, तो यहाँ पे OMe बन जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन का जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड O, ये कन्वर्ट हो गया है C सिंगल बॉन्ड O, है ना? यहाँ पे CO में। तो ये जो है, ये तो स्टेबिलिटी जो है ये CO सिंगल बॉन्ड की ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू CO डबल बॉन्ड। तो इस वजह से ये जो इसे काइनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं जो कि फास्टली बनेगा बट इट बिकम टू बी रिवर्स, क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है।
तो इस वजह से 1-2 एडिशन जो होता है ये काइनेटिक एडिशन होता है, और काइनेटिक जो प्रोडक्ट होता है इसकी एनर्जी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट से ज्यादा होने की वजह से ये बाद में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, और फिर से हमें जो है वहाँ पे 1-4 एडिशन प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, जो कि थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है, जो हम इस तरह से देखेंगे। मतलब ये जो आर्यम है, तो आर मतलब यहाँ पे कार्बन और मेटल के साथ में मतलब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जो होता है, जिसमें कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, है ना, और दूसरा होता है मेटल जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आर है नेगेटिव, ये अगर अटैक करता है फोर्थ पोजीशन पे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा, ये ओपन अप होगा ऑक्सीजन पे, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज के यहाँ पे इंटरेक्शन में ये पॉजिटिव वाला मेटल रहेगा, ठीक है ना। तो हमें इस तरह से ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये थर्मोडायनामिक जो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है ये भी एक्टिवली मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब ये एक मॉलिक्यूल समझो, एक बीकर में जो है, एक बीकर में हमने इसके समझो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं बट एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, किसके, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के, ठीक है। अब इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है उसका कन्वर्जन होगा इस तरह से प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्शन आरएम के साथ होने के बाद इस तरह से कन्वर्ट होगा। अब इसमें जो है ये मॉलिक्यूल खुद में थर्मोडायनामिक जो प्रोडक्ट हम कह रहे हैं कि ये भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्टिवली डोनर रिएक्ट हो सकता है रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और वो सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इधर आने के बाद एज इनॉल करके एक्ट होगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर से ये 1/4 पोजीशन पे यहाँ पे अटैक करेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर ओपन अप होगा और ये वाला जो है ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो फिर से यहाँ पे OMe इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, और हमें ये जो प्रोडक्ट है इस तरह से अलोंग विथ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना, यहाँ पे फिर से कार्बोनिल ग्रुप बनते हुए हमें इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये भी फिर से यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये भी इसमें एक्टिव ग्रुप है, ठीक है ना, ये भी और रिएक्शन में जाके फिर वहाँ पे 1,4 एडिशन वो भी हमें दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है जो कि कंजुगेट एडिशन हम देख रहे हैं इसमें, तो इसमें हमें समझना है कि वन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, ठीक है ना, कार्बोनिल मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, बट इसमें क्या हो रही है, 2 टाइप की एडिशन हो सकती है, 1-2 और 1-4। तो 1-2 एडिशन क्यों नहीं होती, इसके रीजन हमने देखे, क्योंकि इट इज अ काइनेटिक प्रोडक्ट, इट गिव्स काइनेटिक प्रोडक्ट, ओके, और काइनेटिक प्रोडक्ट हैविंग more energy as compared to the thermodynamic product, so because of that this product become to be the reverse, ये रिवर्स हो जाएगा और फिर से हमें उसका थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा, ये एक चीज। और दूसरी चीज जो होती है यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड को देखते हैं, यहाँ का डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला, है ना, बट ये वाला अगर अल्किन हम देखते हैं यहाँ पे, जिसमें ये जो डबल बॉन्ड है इसको कितने सब्स्टिट्यूशन है, ये 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूशन है, और अकॉर्डिंग टू द सेट-जेब रूल वी नो दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बिकम टू बी द मोर स्टेबल, है ना। तो इस वजह से ये जो थर्मोडायनामिकली प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट के साथ। अब एग्जांपल देखते हैं इसमें, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल जो कि हमने आर्यम लिया था वहां पे, ये न्यूक्लियोफाइल अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, आर्यम बोले तो वो आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिया, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अलग अलग टाइप के ले सकते हैं, जो कि इसमें हम एडिशन उसका कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एडिशन करते टाइम में जो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये ब्लू एरो हम देख रहे हैं, ये एडिशन करेगा फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ओपन अप होगा यहाँ पे, मतलब ये हमें कंडीशन देख रही है। अब ये जो है ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इसके कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नहीं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बन सकता है, ये चीज अलग, ठीक है। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड गया, वो पे ओपन अप हो रहा है, ठीक है। इस तरह से होता है, और फाइनली एसिडिफाई करने के बाद जो भी नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने न्यूक्लियोफाइल अलग अलग टाइप के अगर न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं, जैसे कि हमने साइनो लिया, तो साइनो का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CN जो है ये ऐड हो रहा है 1,4 पोजीशन पे, फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा कार्बोनेट का। मतलब एडिशन जो है ये कहाँ पे दिख रही है हमें, ये 4th पोजीशन 1/4 पोजीशन पे हमें एडिशन होते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये ऐसे अल्कोक्सी ग्रुप लेते हैं तो ए बी न्यूक्लियोफाइल एक्ट हो जाएगा, 1/4 पोजीशन पे अटैक करेगा, तो हमें इस तरह से 1,4 एडिशन देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये तो पता है हमें गिलमन रिएजेंट, ये तो फेमस रिएक्शन होती है ऑर्गेनोमेटालिक में, जिसमें कि कॉपर जो है यहाँ पे इसके साथ में जो अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है। ठीक है ना। तो इसे हम गिलमन रिएजेंट कहते हैं, जो कि स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर द अटैक एट 1/4 पोजीशन। ठीक है। यहाँ पे ये 4th वाला कार्बन जो है ना, यहाँ पे अटैक करने के लिए वी आर स्पेशली यूज दिस टाइप ऑफ रिएजेंट इज नोन एज गिलमन रिएजेंट। ठीक है। ये गिलमन रिएजेंट कहते हैं इसे, इसे हम यूज करते हैं 4th पोजीशन पे अटैक करने के लिए। मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जब मॉलिक्यूल रहता है उसके साथ में अगर हमने ये गिलमन रिएजेंट की रिएक्शन अगर करते हैं तो ये अटैक ऑन दिस अल्किल ग्रुप, इट इज यूज फॉर द अल्किलेशन एट 1/4 पोजीशन, अल्किलेशन एट 4th पोजीशन। मतलब यहाँ पे अल्किलेशन करने के लिए ये वाला आर जो है ना, ये वाला आर जो है यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे हमें अल्किलेशन होती हुई दिखाई देगा। पर अल्किलेशन तो हो रहा है बट इट इज द एडिशन इज देयर। ओके, एडिशन कर रहे हैं हम, अल्किल ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से होता है 1/4 एडिशन। अब ये इसको 1/4 एडिशन तो है, बट इसी के साथ में अगर ये वाला इनोलेट हम लेते हैं, जो कि हमने देखा है कि रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाला समझो हमने कंपाउंड ले लिया और उसका हमने क्या किया 1/4 पे एडिशन कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, माइकल एडिशन कहते हैं इसे, माइकल एडिशन रिएक्शन हम उसको कहेंगे, जो कि 1/4 पोजीशन पे ऐड हो रहा है ये नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ना। इसी वजह से ये 1/4 पे अटैक इसका पॉसिबल होता है। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे एडिशन होगा और 4th जिसे हम 1/4 एडिशन कहेंगे, जो कि फाइनली हम यहाँ पे पूरी रिएक्शन होने के बाद ये वाला प्रोडक्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये 4th कार्बन था इसका, तो यहाँ पे एडिशन इसकी होगी, तो ये हुआ एडिशन, माइकल एडिशन। अब देखो अलग अलग टाइप के हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि साइनो डाइथिल एल्यूमिनियम अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे साइनो जो है CN निगेटिव, तो CN का हम एडिशन करेंगे यहाँ पे, तो CN जो है यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये गिलमन रिएजेंट यूज करते हैं तो अल्किल ग्रुप जो है यहाँ पे ये ब्लू कलर वाला, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4th पोजीशन पे, जो कि CH3 रहेगा, जो कि ये वाला प्रोडक्ट है। ये जो मिथिल अमाइन को हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 4th पोजीशन पे। और ये वाला अगर हम लेते हैं रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अभी एडिशन देखा, माइकल एडिशन, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका एडिशन को स्टडी कर सकते हैं इनोलेट के। ठीक है। तो इनो के जो भी एडिशन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है 1/4 पोजीशन पे जाता है, ना कि 1/2 पोजीशन पे। 1/4 पे जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद है इनामाइन। अब इनामाइन जो है, जैसे कि इनोलेट होता है कार्बोनिल और ऑक्सीजन ग्रुप, इस तरह से डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे होता है ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो इसे से हम इनोन कहते हैं, इनॉल कहते हैं, इनॉल। ठीक है ना। मतलब ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और अल्किन भी है, तो ये हो गया इनॉल। ठीक है ना। अब यहाँ पे अमाइन ग्रुप अगर होता है तो ये हो गया इनामाइन, इनामाइन, अमाइन फॉर नाइट्रोजन एंड इन फॉर डबल बॉन्ड, तो ये हुआ इनामाइन। मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन से अगर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया इनामाइन। ठीक है। और ये भी जो इनामाइन यहाँ पे हम देख रहे हैं, इट इज अगेन बिहेव लाइक इनॉल, ये भी इनॉल के जैसा ही रिएक्ट होता है। यहाँ पे डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये पूरे इसमें रिएक्शन होने के बाद ये फिर से इनॉल के जैसा ही यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल करके रिएक्ट होता है। ठीक है।
तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है जिसे हम इनामाइन कर रहे हैं, तो ये इनामाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट होके ये अलग-अलग प्रोडक्ट बना के देगा। ठीक है ना? तो यही जो है रिएक्शन ऑफ इनामाइन, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। देखो फॉर्मेशन ऑफ इनामाइन किस तरह से होता है, बाद में उसको देखेंगे रिएक्शन किस तरह से होती है। देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, हमने इस तरह से अमाइन लिया, ठीक है, इस तरह से अमाइन लिया। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एज अ बेस करके एक्ट होगी, ये अटैक करेगी यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है ये ओपन अप होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, है ना, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि 4 वैलेंसी होगी उसकी। तो 4 वैलेंसी की वजह से एक जो प्रोटॉन है यहाँ का, ये वाला प्रोटॉन, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो भी आएगा ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है यहाँ से, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये H2O लॉस होने के बाद यहाँ पे जो है हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, और इस तरह से हमें ये इनेमाइन जो है बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें डिफरेंट एक ही है कि इसमें अल्कीन जो है, सॉरी अमाइन जो है, हम ये डिफरेंट टाइप का यूज कर सकते हैं, और उसे यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइन हम इनामाइन को हम बना सकते हैं। और इनामाइन जो है ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होगा, और इसके साथ में डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन होके हमें डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये वाली चीज। अब इसमें देखो और दो चीज होती है कि जो इनेमाइन बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है, और ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से। तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये कौन सा साइड में बनेगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस साइड में बने या इस साइड में बने। बट अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो इनामाइन कहाँ बनेगा, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल का, ठीक है। और इसके साथ अमाइन की जब रिएक्शन करेंगे हम और इनामाइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो दो टाइप के इनामाइन बन सकते हैं। ये डिपेंड होता है स्टेरिकल इफेक्ट की वजह से, ठीक है, जो कि हम जो करेंगे उसको जेड से इनामाइन, और दूसरा जो है हॉफमैन इनामाइन, ठीक है। अब सेडजेव इनामाइन में क्या होता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अमाइन हम यूज करते हैं इनामाइन फॉर्म करने के लिए, जिस वजह से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो है हमें यहाँ पे मिलता है। ये वाला अल्किन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, ठीक है। और इधर जो देखते हैं हम सब, जहाँ पे बल्कियर अमाइन हम यूज करेंगे इनेमाइन बनाने के लिए, तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो है यहाँ पे हम देखने को मिलता है, इस साइड में है, ठीक है, इस साइड, जिससे कि हम हॉफमन इनामाइन कहते हैं, या हॉफमन अल्किन हमें पता है, हॉफमन और सेडजेब रूल। तो उस तरह से यहाँ पे जो है इनामाइन बनता है। इसका रीजन जो होता है ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ये हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये मिथिल ग्रुप जो